ان کے آبائی ٹاؤن لانے سے قبل جنوبی افریقہ کی حکمراں پارٹی کی جانب سے پریٹوریا کے ایئر بیس پر دعائیہ تقریب منعقد کی گئی، جس کے بعد منڈیلا کے تابوت کو واٹر کوف ایئر بیس سے متھاتا لایا گیا، جہاں جنوبی افریقی پرچم سے لپٹے ہوئے منڈیلا کی میت کے تابوت کو طیارے سے اتارا گیا اور فوجی گارڈ آف آنر دیا گیا۔ منڈیلا کے اس آخری سفر کے مشاہدے کے لیے سینکڑوں لوگ سڑک کے دونوں کنارے کھڑے تھے۔ جہاں ایک طرف لوگ مغموم تھے، وہیں لوگوں کی بڑی تعداد کو جھومتے گاتے بھی دیکھا گیا کہ انہوں میں مذہبی روایات اور سرکاری اعزاز کے ساتھ منڈیلا کو سپرد لحد کیا جائے گا۔ منڈیلا کی آخری رسومات میں برطانیہ کے پرنس چارلز، ایران کے نائب صدر سمیت افریقی ممالک کے سربراہان اور دیگر سرکردہ شخصیات شرکت کریں گی۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ کبڈی کے میدان میں ہندوستان نے اپنے عالمی چیمپئن کے خطاب کو برقرار رکھا ہے۔ چوتھے عالمی کپ کے فائنل میں ہندوستان نے اپنے روایتی حریف پاکستان کو 48-39 سے شکست دے دی۔ لدھیانہ کے گرو نانک اسٹیڈیم میں سنیچر کو کھیلا گیا مقابلہ کافی دلچسپ رہا۔ کھیل کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑا مقابلہ رہا، تاہم بعد میں دفاعی چیمپئن ہندوستان نے بازی مار لی اور 9 پوائنٹ کے فرق سے پاکستانی ٹیم کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ہندوستانی ٹیم کو ٹرافی کے علاوہ 2 کروڑ روپے نقد عطا کیے گئے، جبکہ رنر اپ پاکستان کو 1 کروڑ روپے دیے گئے۔ اس کے علاوہ بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے والے 2 ہندوستانی کھلاڑیوں کو ٹریکٹرز دیے گئے۔ ہندوستان اور پاکستانی پنجاب کے وزرائے اعلیٰ پرکاش سنگھ بادل اور شہباز شریف کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ادھر جونیئر مینس ہاکی ورلڈ کپ میں ہندوستان کو مایوسی ہاتھ لگی اور اسے پاکستانی ٹیم سے ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ نئی دہلی میں میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں پاکستان نے ہندوستان کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-2 سے ہرا دیا۔ ہند پاک کے درمیان مہم کے اختتامی میچ کے بعد میزبان ہندوستان 10ویں نمبر پر جبکہ پاکستان کی ٹیم 9ویں نمبر پر رہی۔ اور ایک بار پھر بتا دیں ناظرین، بی جے پی کی جانب سے آج ملک کے 1000 مقامات پر رن فار یونٹی میراتھن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 63ویں برسی کے موقع پر یہ اتحاد دوڑ منعقد کی جا رہی ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں وزیر اعلیٰ نریندر مودی رن فار یونٹی کو صبح 8 بجے ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ دوسری جانب جے پور میں راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے اتحاد دوڑ کا افتتاح کریں گے۔ اولمپک میڈلسٹ راجیہ وردھن سنگھ راٹھور کا کہنا ہے کہ راجستھان کے 32 اضلاع میں اس دوڑ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ ملک بھر میں 5 ملین افراد دوڑ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس میراتھن کے ذریعے بی جے پی ایک عالمی ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیک وقت ملک کے 1000 شہروں میں 5 ملین سے زیادہ لوگوں کی دوڑ میں شرکت سے اسے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آج جو یہ ایکتا کے لیے دوڑ آیوجت کی گئی ہے، اس میں سرپرتھم 21 کلومیٹر دوڑ جو آیوجت ہوگی، اس کے سمبند میں آپ کو کچھ جانکاری دے دوں۔ 21 کلومیٹر کی دوڑ، 21 کلومیٹر رن، سٹارٹ لائن سے سٹارٹ ہونے کے پشچات۔ ای ٹی وی انڈیا میں فی الحال اتنا ہی، ایک بریک کے بعد دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر۔ آداب۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ حیدرآباد میٹرو ریل پروجیکٹ دراصل یہ کس نوعیت کا پروجیکٹ ہے اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ اوپن کمپٹیشن کے ذریعے یہ پروجیکٹ کو ہم نے ٹینڈر کیا تھا۔
उसके बाद L&T पहली लोएस्ट कंपनी साबित हुई, जो कि ये प्रोजेक्ट में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट होता, यानी एक बार कौन सी भी कंपनी कितना पैसा चाहिए ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स मिसाल के तौर पर ऐसे हैं कि ये जो भी कंपनी लेगी प्रोजेक्ट, ये 35 साल तक उसको परमिशन रहेगा इसको चलाने का। तो गुजारिश है तमाम पुराने शहर के रहने वाले लोगों से कि आज आप उनको कोऑपरेट करें, मदद करें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होगी कंस्ट्रक्शन होते हुए, 1 साल 2 साल आप तकलीफ दे लें, उसके बाद 100 साल तक हमको आराम रहेगा इस मेट्रो रेल आने से। हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ इंजीनियर और चीफ मैनेजर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दारपुरा लोलाब में एक पोल्ट्री फार्म को SSA स्कूल बिल्डिंग जाहिर करने का स्कैंडल, जोनल एजुकेशन अफसर मुअत्तल, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने कहा मामले की तहकीकात जारी। हंदवाड़ा मरीज की मौत का मामला ले रहा है सियासी रंग, इंजीनियर रशीद ने कहा वुकला तहकीकात को करना चाहते हैं मुतासर। और श्रीनगर में आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दूसरा दिन, कई दस्तावेजी और मुख्तसर फिल्मों की होगी पेशकश। और खबरें तफसील से। दारपुरा लोलाब में एक पोल्ट्री फार्म को SSA स्कूल बिल्डिंग जाहिर करके 8 लाख रुपए गबन करने के इल्जाम में सुगाम के जोनल एजुकेशन अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इस मामले में जहां मुअत्तल शुदा अफसर अपनी बेगुनाही की बात कर रहे हैं, वहीं इलाके के कुछ लोगों ने उनकी हिमायत में उसकी मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का कहना है कि चीफ एजुकेशन अफसर की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ये इमारत पोल्ट्री फार्म का एक हिस्सा इस्तेमाल करके बनाई गई है, लेकिन साथ ही इस मामले की तहकीकात के लिए तकनीकी कमेटी तश्कील देने की बात भी कर रहे हैं। पहले जड़ियो थे इंचार्ज जड़ियो, उसने वर्ड कार्ड इशू किया था असन बठू प्राइमरी स्कूल के लिए। तो वहां पे कोई शार्ट बना हुआ था, पुराना शार्ट बना हुआ था, फिर उन्होंने मुनहदम किया है और वहां नई तामीर खड़ा कर दी है। तो जब मैं वहां गया तो वहां स्लैब लेवल तक बिल्डिंग बन चुकी थी और लोगों को मैंने बुलाया वहां पे और उन्होंने सबों ने कहा कि ये नई बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पुराना शार्ट था वो मुनहदम किया गया है। और इसके बाद जो फाइल मेरे पास आ चुकी है उसमें तमाम जैसे JEE का रिपोर्ट, AEE ये टेक्निकल विंग है, तो उन्होंने भी इस सर्टिफिकेट इजरा की है इस सिलसिले में, और विलेज एजुकेशन कमेटी का भी है इसमें, और हेडमास्टर साहब का भी है कि ये बिल्डिंग स्लैब लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से उन्होंने 1.5 कनाल जमीन भी इसके लिए दी है, जिसके कागजात यहाँ पे है। तो वहाँ 6 लाख रुपए में 1 कनाल मिलता है, यानी जमीन का ही कास्ट 9 लाख बनता है, और 8 लाख हमने उनको दिए हैं, जबकि उनका 12 लाख उनको देने थे। तो इस तरीके से ये बेबुनियाद है जनाब। हम डायरेक्टर साहब को बावर करना चाहते हैं, हम ग्राउंड लेवल पर वो आइए, हमारी ये बिल्डिंग देखिए, हमने कोई चोरी नहीं की है जिस पर ये बेचारा बेगुनाह जरियों को यहाँ सस्पेंड किया गया है। मैंने उसमें एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा को मैंने ऑर्डर किया, उन्होंने ये आज मुझे रिपोर्ट आज ही सबमिट की, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि ये स्ट्रक्चर था पहले बना हुआ था, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि लेकिन बिल्डिंग को इस तरीके से अब रेनोवेट किया गया है कि वो बाकी इस बिल्डिंग स्कूल बिल्डिंग से अच्छा है। लेकिन चूंकि पहले से ही वहाँ एग्जिस्ट कर रही थी बिल्डिंग, जैसे कि लोगों ने बताया था, इस सिलसिले में अब चूंकि मुतजाद बयानात हैं,
चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जारियो साहब कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं थी, चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं बिल्डिंग पहले एग्जिस्ट कर रही थी। इसलिए हमने एक टेक्निकल कमेटी, मैंने आज सीपीओ सबको बताया कि वो एक टेक्निकल कमेटी हम तश्कील दे देंगे, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर एंड भी और दूसरे 1-2 आदमी इंजीनियर रखेंगे, जो हमें इसकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे क्या ये बिल्डिंग पहले वहां बनी हुई थी या ये एसएसए में इसी साल नई बनाई गई है। हंदवाड़ा में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एम्बुलेंस को मुबैना तौर पर रोके जाने की वजह से मरीज की मौत का मामला सियासी रंग ले रहा है। लंगेट के रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद का कहना है कि कुछ वकला सोपोर और बारामूला में एहतजाज करके इस मामले की तहकीकात को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इंजीनियर रशीद ने कहा कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, जिसकी वजह से वकला अपने एहतजाज में उन्हें भी निशाना बना रहे हैं। ये मैं बार एसोसिएशन से मुआवना गुजारिश करता हूं कि जिन भी लोगों ने आज मुझे उनके प्रोटेस्ट करने से, मेरा फोटो जलाने से, मुझे कुछ करने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दे आर द इंटेलेक्चुअल्स, दे शुड इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स दैट हैव दे डन ए राइट थिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा यह है, डिप्टी कमिश्नर बारामूला इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं एक ऐसे मौके पर जब मामला अदालत में भी है, ऑनरेबल हाईकोर्ट इसका कॉग्निजेंस ले चुकी है, डिप्टी कमिश्नर भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जो वकला साहिबान हैं, जिन लोगों ने भी आज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने उनका बेसिक मुद्दा यह है, बेसिक मकसद यह है कि वो डिप्टी कमिश्नर और जो तहकीकात हो रही है उस पर असरअंदाज होने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काजीगुंड अनंतनाग में कायम मुनसिफ कोर्ट के वकला ने काजीगुंड में एक बाज़ाब्ता कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की मांग की है। इस सिलसिले में यहां पर वकला ने अलामती हड़ताल की और कामकाज का बाइकआउट किया। वकला ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि काजीगुंड में जल्द से जल्द एक अलहदा कोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए। काजीगुंड में अदालत की प्रेमिसेस अभी तक तैयार नहीं हुई है, अगरचे कोर्ट को 12 साल से फंक्शनल है। हमने इस बारे में आज बार के रेजोल्यूशन पर बाइकआउट करने की अपील की और रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि वो इस मामले में जाती तौर पर इंटरवेंशन करके यहाँ पर एक हमारा प्रेमिसेस तैयार कराने के आदेश दें। कांग्रेस लीडर और जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अवाम के साथ वो वादे किए जो वो पूरे नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि वो हुकूमत बनाने से भाग रही है। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। अब आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जो उसका आउटकम रहा, जिन लोगों ने वहां पर मतलब हवाई वादे किए, हवाई प्रोग्राम्स दिए, आज सरकार बनाने से क्यों भागते? अगर उनको पता होता है कि हम ये चीज, लोग हमें ये जिम्मेदारी देंगे और फिर हम ये परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर वो आज सरकार बनाने से नहीं भागते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो आप है, क्योंकि उनको पता है हमने इतने ज्यादा अपने मीटर्स आगे दिए हैं जो कोई भी सरकार में जाने के बाद में किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल है। क्या आप पानी मुफ्त करोगे, आप पावर 50% डाउन करोगे, ये तो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज है, कोई स्टेट कैसे चलेगा? भारतीय गुज्जर महासभा ने गुज्जर बकरवाल के मसाइल के तई संजीदगी दिखाने पर वजारत उज़्मा के बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सताइश की। गुज्जर महासभा के सदर अशफाकुर रहमान ने जम्मू में ईटीवी से बात करते हुए कहा कि जम्मू में ललकार रैली के दौरान गुज्जरों के मसाइल के तई नरेंद्र मोदी ने जिस संजीदगी का मुजाहरा किया, इससे अंदाजा होता है कि वो गुज्जर बकरवाल के मसाइल को बखूबी वाकिफ हैं। वाज़ेह है कि भारतीय गुज्जर महासभा अलहदा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कायम करने का मुतालबा कर रही है ताकि फंड का सही इस्तेमाल हो सके। लेकिन उससे उठ के चलना, तो मैं समझता हूँ कि फिर कुछ बेहतरी हो पाएगी। जो मोदी जी की ललकार रैली यहाँ जम्मू के अंदर हुई, उससे हमें हमारे गुज्जर बकरवाल को, चाहे वो टंगडार का रहने वाला हो, चाहे कुपवाड़ा का रहने वाला हो, चाहे शुपैया का हो, चाहे दीगर कई इलाका जात का कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे जम्मू सूबे का रहने वाला हो, उसके अंदर एक हौसला अफजाई हुई
कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतनी उभर के लाखों लोगों के सामने गुज्जर बकरवाल की आवाज उठाए, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं उनके लिए आशीर्वाद के रूप में ये कदम था। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसी ढंग से अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मसाइल उभारती रहीं, जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने उभारा है, तो मैं समझता हूं कि इसको भी एक सही दिशा मिल सकती है गुज्जर बकरवाल तबके को, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल तबके को। श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में आतिशज़दगी का एक वाकया पेश आया। इस वाकये में अस्पताल का इंतजामी ब्लॉक जलकर खाकस्तर हो गया। ताहम अस्पताल के मरीज और मुलाजमीन महफूज हैं। आग तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। 1 घंटे पहले मतलब ये कमरे से शुरू हो गई, तो वी इमीडिएटली इन्फॉर्म फायर सर्विसेज पीपल एंड दे केम एंड यू आर सीइंग ये हो रहा है कंट्रोल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामी तंजीम ने खत इफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वालों के लिए रिजर्वेशन की मांग की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के तर्जुमान ने कहा कि कई लोग रिजर्वेशन का गैर जरूरी फायदा उठा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए, ऐसा जतन करें, लोगों में आपस में प्यार बढ़े। सरकार ये जो नीतियां लेकर चल रही है, जो समाज के लिए घातक हैं, उनको बंद करे। समाज को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। धर्म जाति के आधार पर और रीजन धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन है ये खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन उन लोगों को दी जाना चाहिए जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के हैं। आज जाति धर्म जिला पुलवामा के कोयल इलाके की मकामी आबादी ने बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरीन ने अवंतीपुरा पुलवामा शाहराह पर धरना देकर कई घंटों तक ट्रैफिक नक्लो हरकत मुअत्तल कर दी। मुजाहरीन ने बिजली की अदम दस्तियाबी पर महकमे बिजली के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि उनका इलाका गुज़श्ता 2 माह से बिजली सप्लाई से बिल्कुल महरूम है। हमें पावर नहीं चल रहा है 2 महीने से, और हमें यही गुजारिश है, हमें फीस की कमी होनी चाहिए और ट्रांसफार्मर चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। देही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर का कहना है कि रियासती हुकूमत ने देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। सागर कल न्यूसी महूर में मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखने के बाद अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें तरक्की के इस अमल को अनदेखा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। महूर के रुकन असम्बली अब्दुल गनी मलिक ने भी जलसे से खिताब किया। न्यूसी मॉडल विलेज 1.12 करोड़ रुपए
की लागत से बनाया जा रहा है। नौजवान, माएं, बहनें, बच्चियां सब के और जब पीडीपी के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि उनके दौर इख्तियार में यहां के नौजवानों को कम सरकारी नौकरियां फराहम करने की वजह नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहैसियत वज़ीर आला मरकजी सरकार के साथ पहले ही इस बारे में एक मुआहदा किया था। मुजफ्फर बेग पीडीपी की जानिब से कल अनंतनाग के हल्के इंतखाब बिजबिहाड़ा के मटन और खरम इलाके में अवामी रैलियों से खिताब कर रहे थे। रैली में अनंतनाग के मेंबरान असेंबली अब्दुर्रहमान बेरी, रफी अहमद मीर और पीर मंसूर हुसैन ने भी लोगों से खिताब किया। बीजेपी के सीनियर लीडर और बीजेवाईएम के कौमी सदर अनुराग ठाकुर भी आज मुनक्किद होने वाले रन फॉर यूनिटी नामी मेगा मैराथन में शिरकत करने वाले हैं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि ये मैराथन रियासत के 3 हिस्सों में होगा, जो रियासत के लोगों के आपसी इत्तेहाद की अलामत होगा। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा एक शुभ संकेत है। ये जम्मू कश्मीर में और कश्मीर और लद्दाख जैसे सुदूर क्षेत्र में भी इस प्रकार की रन हो रही है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो युवा नेता हैं, जो एमपी हैं, अपने अनुराग ठाकुर, वो कल 10 बजे जो सतवारी चौक से यहां ये जो इवेंट शुरू होगा वहां से इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। इसमें अलग अलग प्रकार के लोग, जिसमें स्कूलों के बच्चे और बाकी जो लोग हैं, नौजवान होंगे, एथलीट होंगे, आर्टिस्ट होंगे, इस प्रकार के लोग इसमें भागेंगे। श्रीनगर में कल दुनिया के एक अजीम मरहूम रहनुमा नेल्सन मंडेला की याद में एक रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम गांधी ग्लोबल फैमिली ने किया था। रैली में शामिल अफराद ने टीआरसी से प्रेस कॉलोनी तक खामोश मार्च किया। एटीवी से बातचीत के दौरान रैली में शामिल लोगों ने नेल्सन मंडेला के पैगाम अमन और अदम तशद्दुद को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। हमने मार्च जिसने किया ताकि नेल्सन मंडेला को हम खराज यकीन पर पेश करें, और हम चाहते हैं कि ये बात दूसरे लोगों तक पहुंचे और अपकमिंग जनरेशन तक पहुंचे कि हमें अच्छी तरीके से और इक्वलिटी से हमें काम करना चाहिए। इमारतों की तामीर में अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करने के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जम्मू में 19 दिसंबर से 22 दिसंबर तक 4 रोजा नुमाइश मुनक्किद करने वाली है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए इंस्टीट्यूट के सीनियर मेंबर हरविंदर सिंह ने कहा कि ये जानकारी तमाम लोगों के लिए है। इस नुमाइश में आम लोगों के अलावा सरकारी अफसरान भी शिरकत करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब वी बीन वेरी सिलेक्टिव इन चूज जो भी है, जैसे आपकी फाइल्स हैं जनरल पब्लिक के लिए। जो आजकल जितना बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री जो है बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, हर दूसरे दिन नया मटेरियल, नई चीजें डेवलप हो रही हैं। तो हमारा मकसद बेसिकली ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आज की डेट में क्या क्या लेटेस्ट मटेरियल्स हैं और कैसे अपनी बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन जो कि एक बेसिक इंसान की जरूरत है उसको फैसिलिटेट किया जा सके। ममलिकती वजीर सेहत शब्बीर अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत रवा साल सभी जेर तामीर प्रोजेक्टों को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। इन बातों का इजहार कल ममलिकती वजीर सेहत ने ईटीवी के साथ पुलवामा में किया। इससे पहले शब्बीर अहमद खान ने जिला पुलवामा के टिहाब इलाके में पब्लिक हेल्थ सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। ये कोशिश है कि मेरे जितने भी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो एनआरएचएम से चल रहे हैं, चाहे स्टेट सेक्टर से चल रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट सेक्टर से चल रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस साल वो मुकम्मल इस फाइनेंशियल ईयर में जो है वो हो, जिन पर थोड़ा काम है। और अभी दिल्ली में हमारी जो एनआरएचएम की पिछले 4-5 साल में एलोकेशन थी, इस साल वो डबल हो गई है। और जहां कहीं फंडिंग की कभी हम पैसा देंगे। और हमारी प्रायोरिटी है कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के जितने हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं, चाहे पीएचसी हैं, सीएचसी हैं या मेरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैं चाहता हूं कि प्रायोरिटी पर मुकम्मल हो। श्रीनगर में कल 2 रोजा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह वजीर सेहत गुलाम अहमद मीर ने किया। फेस्टिवल में कई डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में पेश की जा रही हैं।
phenomena, your emotion, how do you express? क्योंकि काफ़ी यंग फिल्म मेकर्स पास आउट्स होते हैं मास कॉम डिपार्टमेंट से, बाकी जगहों से, लेकिन हर कोई बाहर तो जा नहीं सकता, तो अपना काम वो कभी अपनी स्टेट में दिखाई नहीं पाते। सो हमने सोचा एक तो उनके लिए कि जो अपना काम करते हैं हमारे लोग उनका काम देखें, और उन लोगों के लिए बाकी दुनिया में क्या हो रहा है डॉक्यूमेंट्री फिल्मिंग में, वो यहाँ आके वो फिल्म स्क्रीन और उनसे सीखें। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजा स्टेप है, और इसमें कोई बाहर के लोग नहीं है, और हमारे अपने बच्चे जिनका कैरियर इन चीजों से जुड़ा हुआ है, जिनकी रोजी रोटी इन चीजों से जुड़ा है, उनकी अंदर एबिलिटी है और कैपेबिलिटी है, अगर उनका सोच, उनका दिमाग, उनका कैरियर इसी पर निकल रहा है, तो वही हम जब ओवरऑल टूरिज्म की बात करते हैं कि ये लोगों को रोजी रोटी देने वाला एक ट्रेड है, तो उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसके थ्रू अगर बच्चे अपनी कला, अपनी काबिलियत देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उनको एनकरेज। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे कानून में एनुअल डे मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए गए। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों के असातिज़ा ने शिरकत की। कोर्स मुकम्मल करने वाले बैच को शानदार तरीके से अलविदा कहा गया, जबकि नए बैच का इस्तकबाल किया गया। जी हमारा ये एक्चुअली एनुअल डे था जो हमारी डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मना रही है। हमारी डिपार्टमेंट में इस तरह की फंक्शनें अक्सर बेसिस होती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ बड़े पैमाने पर हमने इस प्रोग्राम को किया है। इसमें हमारी ये प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनके हुनर को, उनके अंदर जो छुपे टैलेंट को उसको निखारने की कोशिश करते हैं। हुकूमत की इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर के दूरदराज गांव समरोली में लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार पाने वालों में खवातीन भी शामिल हैं। रोजगार की वजह से गांव वालों की माशी हालत बेहतर हुई है। वाटर शेड मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है ये अभी ही लॉन्च हुई है हमारे यहाँ पे, और इससे हमारे गांव को काफी फायदा है। अभी एंट्री पॉइंट बन रहे हैं जहाँ ये हमारा समरोली जो है ये ऊपर से आने में, यहाँ पे प्रॉब्लम शमशान घाट था तो लोगों को आने में काफी परेशानी होती थी। हमारे तकरीबन यहाँ की जो हमारी माता बहनें हैं दूर नहीं जा सकती हैं मजदूरी या कोई काम करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको भी कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ से उधमपुर काफी 15-20 किलोमीटर दूर है, तो एक मजदूर का जाना दूर बहुत मुश्किल है, इसलिए वो लोग जहाँ पे ही काम करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि अवाम रियासत में बदलाव चाहती है और ऐसे में अवामी मुत्तहदा महाज एक अच्छा मुतबादिल पेश कर सकता है। वो कल बडगाम के दरगरबस्त वडर इलाके में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने खान साहब हल्के इंतखाब में 2 सर्विस वाटर रिजर्वायर्स का संग बुनियाद रखा। कमराज फाउंडेशन सुपोर के चेयरमैन इरशाद कार का कहना है कि सुपोर हल्के की आवाम कई मुश्किलात से दो चार है। आवाम को बिजली, पानी और सड़क राब्ते के मसाइल का सामना है। इरशाद कार सुपोर तुजार शरीफ में एक आवामी जलसे से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कमराज लोगों के मसाइल जानते हुए उन्हें मुतल्लिका हुकाम और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। इरशाद कार ने कहा कि लोग ऐसे उम्मीदवारों का इंतखाब करके उन्हें रियासत असेंबली के ऐवान में पहुंचाए जो उनके मसाइल के हल के लिए आवाज उठा सके। इरशाद कार ने इशारा दिया कि उनकी तंजीम असेंबली चुनाव में हिस्सा ले सकती है। याद रहे कि इरशाद कार सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम रसूल कार के फर्जंद है। और हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी लाए अपने काम काज में, और हर किसी राशन के डिपो पे चाहे बिजली का दफ्तर हो वहां पे कंप्लेंट और
इंक्वायरी के नंबर्स लगाए। हम अभी अपनी तरफ से लोगों में जाके उनके मसले मसाइल जद्दोजहद के जरिए हल कर रहे हैं। अगर जद्दोजहद के जरिए हल नहीं हुए तो इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। महकमा एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए बारामूला में बर्ड फ्लू कैंप का इनेकाद किया गया। किसानों की एक